وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، مدرسہ نور السلام کیراوان آج اس مدرسے کے دورے پر سمیع سے آئی ہوئی جماعت آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر، کسی انسانوں پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو ان کے پاس دیندار لوگ اور علماء کو بھیجتا ہے، اور دین کی اللہ اس قوم کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس سمیع سے آئی ہوئی جماعت صرف مکاتب کے دورے پر آئی ہوئی ہے، اور مکاتب کے بچے، طلباء و طالبات کو ہمت افزائی کے لیے انعامات سے نواز رہے ہیں، تاکہ بچوں کی ہمت اور بڑھے، بچے شوق اور ذوق سے تعلیم حاصل کریں۔ یہ جماعت تقریباً 9 یا 10 سال سے کچھ کے اندر ہر سال مکاتب کا دورہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو آج جب ہمارے پاس یہ جماعت آئی ہے تو مولانا عبدالقیوم صاحب جو سمیع کے امیر ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں آپ کے سامنے مدعو کرتے ہیں، وہ آئیں گے، چند باتیں مجھے اور آپ کو تعلیم دین کے بارے میں اور اللہ اور رسول کی کچھ باتیں مجھے اور آپ کو سنائیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج آپ کے بچوں کا جو میں نے کچھ اسباق سبق سنے، الحمدللہ طبیعت خوش ہو گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ الحمدللہ اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں معصوم بچے اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے علاقے دیکھے، وہاں پر بچوں کو نبی کا نام بھی معلوم ہے، ان کو صحیح ڈھنگ سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ یہاں کے بچوں کا سنا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی محنت ہے، استاد کی بھی محنت ہے۔ الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور جب آپ علم کی اہمیت کو سمجھو گے تو انشاءاللہ اللہ راستے اور آسان کر دے گا۔ میں نے شروع میں جو آیت کی تھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کے بھی درجات کو بلند کرے گا جن کو علم دیا گیا، ان کے بھی درجات کو۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں کہ ایک انسان ان پڑھ ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، اور جس کو آتا ہے وہ ہر اعتبار سے خوبصورت لگتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ آپ خود جائزہ دے سکتے ہیں۔ تو علم کی جو اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ذرا یہ بات سوچئے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو انجینئر بنتا ہے یا انگلش سکھاتا ہے، میتھ سکھاتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ کہاں ہے؟
अल्लाह के रसूल ने किन की तारीफ की? दुनिया में सबसे बेहतर अफजल आला इस रुए जमीन पर अगर तुम बेहतर शख्सियत देखना चाहते हो तो जो कुरान को सीखते और सिखाते, ये सबसे बेहतर है। अब जरा सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तारीफ करते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु सुवरकुम वअजसाकुम वला यंजुरु कुलूबुकुम आमालुकुम। अल्लाह ताला किसी की शक्ल सूरत को नहीं देखता, ये काला है या गोरा है, बल्कि उनके अमाल को देखता है, दिलों को देखता है। एक पैलेस में रहने वाला, महलों में रहने वाला और एक झुपड़ी पट्टी में रहने वाला, चटनी रोटी खाकर अल्लाह को याद करने वाला, वो अरबों खरबोपति जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, उनकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं। इन मामूली सी झोपड़ी में रहकर अल्लाह को याद करने वाला वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इन्नल आलिम यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ हत्ता अल हितान फिल मा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इन्नल आलिम, बेशक आलिम, उनकी शान ये है कि इनके लिए इस्तिगफार करती है। क्या? कौन? आसमान और जमीन की जितनी भी मखलूकात हैं वो सब उनके लिए क्या करती है? इस्तिगफार करती है, दुआएं करती है, बख्शिश की दुआएं। ये आप देख रहे हो कि ये जंगल में रहने वाले, चाहे वो घेटे, बकरे, दरिंदे, शेर, चीते, जितनी भी मखलूकात हैं, वो सब क्या करती है? दुआएं करती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल आलिम यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़। आसमान जमीन की जितनी भी मखलूकात हैं, हम में से किसी ने भी सारी मखलूकात देखी? देखिए कितनी सारी मखलूकात हैं, लाखों की तादाद में, वो सब हाथ उठाकर अपने रीस से वो क्या करती है? दुआ करती है आलिम के लिए। जरूरी नहीं वो आलिम डिग्री वाला हो, बल्कि जो भी इल्म सीखता है उनके लिए, आलिम के लिए इस्तिगफार की दुआएं। हत्तल हितानी फिल मा, यहाँ तक के समंदर में रहने वाली मछलियां जो तालाब में होती है, वो भी आलिम के लिए क्या करती है? दुआ करती। तो ये इल्म जो है उसको मामूली ना समझिए। इल्म तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आप चलते फिरते, जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे ही इल्म हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अब मस्जिद में आएंगे, इमाम साहब का दर्स इस घर से सुनने आएंगे कि चलो कुछ सीख ले। मस्जिद में आएंगे, इमाम साहब कुछ नसीहतें करेंगे, उस पर हम अमल करेंगे। अगर इस नियत से भी अगर आप मस्जिद में आओगे, एक और हदीस है, अबू उमामा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इला मस्जिद ला युरीदु इल्ला अय्यतमल्लाहु खैरन औ युअल्लिमुल्लाहु कान लहू का अजरि हाजिन तामतन हज्जतुहु। जो आदमी मस्जिद आता है, किस घर से? इल्म सीखने या सिखाने की घर से। इल्म सीखने या सिखाना। आप आए, चलो मैं 5 बातें जानता हूँ, चलो मस्जिद में आऊंगा, बच्चों को कुछ नसीहत करूंगा। आप इस घर से निकले कि चलो मस्जिद में जाएंगे, कुछ दर्स सुनेंगे, अमल करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उन दोनों के बारे में कि उनका जो अज्र है, उनका जो सवाब है, क्या है? हज के बराबर सवाब है। कितना? पूरा हज के बराबर। अल्लाह के रसूल का अज्र हाजिन तामतन हज्जु, पूरा हज के बराबर सवाब। अल्लाह के यहाँ खजाना की कोई कमी नहीं। अल्लाह सवाब देना चाहे तो क्या कम हो जाएगा? तो ये अमल है, उसको आप मामूली ना समझिए। आप जाओ मस्जिद में, इस घर से जाए कि हम कुछ सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं। अब मस्जिद में आइए, अपने बच्चों को भी तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। आप खास कर अपने बच्चों को तालीम की तरफ उनका माइल कीजिए, उन्हें तरबियत दीजिए और उनको मदरसे भेजिए। कोई ये कहेगा कि मैं 10 भैंसे पालता हूँ, मरने के बाद मुझे 10 भैंसों का सवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे पास बारी है, इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फायदा पहुंचाएगी। नहीं पहुंचा। हम और आप सब जानते कि हमारे पास अरबों खरबों की दौलत रहेगी, मगर उस दौलत से हमें कोई अजर सवाब नहीं। मगर एक दौलत ऐसी है जो मरने के बाद भी
फ़ायदा पहुंचा सकती है वो आपकी औलाद है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युनफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू बिही, कि मरने के बाद इंसान के सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सिवाय 3 अमल के। इंसान मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाते, मगर 3 अमल ऐसे हैं उनको मरने के बाद भी फायदा पहुंचाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आपको मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे? तो वो एक ये है कि मस्जिद बनाना या मदरसा बनाना, कोई भी सदका है जारिया। अगर आपने एक दरख्त भी उगा दिया वो भी आपके लिए क्या है? सदका है। अगर वो दरख्त से चनिन परिन अगर वो भी कुछ खाएंगे, कोई इंसान छाया भी हासिल करेगा, जब तक वो दरख्त रहेगा तब तक क्या मिलेगा? आपको सवाब मिलेगा। कोई बड़ा खर्चा तो करना नहीं, एक दरख्त उगाना है और उससे लोग जितना भी फायदा हासिल करेंगे वो आपको सवाब मिलेगा। तो सदके जारिया में सब कुछ है, परब बनाना, मदरसा बनाना, मस्जिद मदारिज, कुछ भी। दूसरा इल्म, अगर आपके इल्म से कोई नमाजी बन गया, अगर आपके इल्म से कोई सही रास्ते पर आ गया, आपके दर्स से लोग हिदायत याफ्ता हो गए, सुधर गए, दीनदार बन गए, अल्लाह वाले बन गए, जब तक वो खैर का काम करता रहेगा आपको अजर मिलता है। तीसरा है औलाद, नेक औलाद। अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, इन्हें दीनदार बनाया, उन्हें अल्लाह वाला बनाया, इन्हें कुरान की तालीम दी, वाकई में ये दीनदार बच्चे बनेंगे, तो जब आप तो मर गए, ये नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, जितना भी वो खैर का अमल करेंगे वो मरने के बाद आपको अजरा मिलेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत। तो आप चाहते हैं कि आपको मरने के बाद भी आपकी नेकियों का सिलसिला जारी रहे, चालू रहे, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को कुरान सिखाए, ताकि वो कुरान सीखेंगे तो वो वालिदैन के हुकूक को जानेंगे, माँ बाप के हुकूक को जानेंगे, बहन के हुकूक को जानेंगे, वो दीनदार बनेंगे, फिर अपने हक में भी दुआ करेंगे तो वो आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश कीजिए। हादी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों के ऊपर तालीम पे खर्च कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाए खैर फी दुनिया वल आखिरह। ये थे मौलाना अब्दुल साहब, अमीर जमीयत अहले हदीस समी। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचा और मैं अपनी तरफ से, कीरावान की तरफ से, कांडावान की तरफ से मैं इन हजरात का, जो हमारे मेहमान समी से आए हैं, हम पर तवज्जो दी, अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जो मेहमान हमारे इर्द गिर्द से आए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और समी से आए हुए मेहमान उन्हीं का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और इनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मेहनतों को, इनके आने को और इनके अखराजात को कबूल फरमाए, और ये सारे जो काम कर रहे हैं इन कामों को इनके लिए सवाब जारिया बनाए।